or 4, right? And by the way, the good linear operators, right? Good means which have some pleasing properties are the ones for which t commutes with its adjoint, right? And such operators are called as normal operators. So let me begin today with a with a okay. So okay. So we saw that all these operators satisfied this property that t star is equal to t star t, right? So let me let me add that. Oh, so as usual, V is a finite dimensional inner product space over F. T is a linear operator on V. So this is called normal if it commutes with its adjoint, which is what we saw that this thing happens if T satisfies any of those four properties which we mentioned yesterday or last time. Then T is called T is called mm, T is called what is the name? I'm forgetting. T is called unitary. So this is the field is F unitary if the field is this and T star is nothing but the inverse of this thing. This is called orthogonal if the field is the field of reals and T star is equal to T inverse. And you can see that this condition is same thing as saying that the transpose of T is equal to T inverse. क्योंकि अगर फील्ड इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में तो कोई फर्क आएगा नहीं. तो टी स्टार इज नथिंग बट टी ट्रांसपोज ओनली. तो इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, राइट? सो a transformation is said to be normal, unitary, or orthogonal if these three properties are satisfied, right? These three properties are satisfied, and you can see that okay, so we can notice that proposition, we can notice that for a U belonging to TV, if U is a linear operator on this, the following conditions are equivalent. Equivalent are number one, that ux uy is equal to xy for all xy
नंबर 2, हम बल्कि इसको हम नंबर 2 बोल देते हैं. So what is my number 1? My number 1 is U star is equal to U inverse. Sorry, U star is equal to यानी कि ये U जो है ऑर्थोगोनल या यूनिटरी है, डिपेंडिंग ऑन आपकी फील्ड क्या है. दूसरा आपका ये हो गया, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज, इसको 3 बोल देंगे. थर्ड इज that the norm of, so this is norm of ux is equal to the norm of x for every x in V, right? So let us see why this happens. So you'll see कि तो पहले हम लोग देखते हैं 1 implies 2. तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है. तो अब देखिएगा कि कोई भी xy हो, you will notice that this is equal to x और चूंकि 1 में मान के चल रहे हैं u star is equal to u inverse, so this is x, so this is equal to xy. So for all xy, this inner product is equal to this thing, which is what 2 says. Then 2 implies 3, right? Then let us go to 2 implies 3. 2 implies 3. तो 3 में हमको ये दिखाना है. So you see, you remember that ux, this thing is equal to inner product of ux with ux, and which is equal to चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमको 2 दिया हुआ है, and this is equal to square of the norm of this thing. So this is equal to this thing. So therefore ये हो गया आपका. So 1 implies 2, 2 implies 3, now 3 implies 1. Right? You take 3 implies 1. So we notice that यहाँ हमको लिखना चाहिए था. सर नॉर्म में x होगा ना वहाँ पे? क्या चीज? सर वो नॉर्म में वहाँ पे x और x होगा ना, बिकॉज सर ux एंड ux लिए है ना, सेकंड कंडीशन ही होल्ड करेगी, बट वहाँ पे x और x होगा. देन सर x मॉड स्क्वायर किए ना आप, नॉर्म, सॉरी सर 2 से 3. देख लिया कहाँ गलती किया, देख लिया, पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू. ये गलत लिख दिया है, ये होना चाहिए था. सो यू शुड ऑल बी वॉचफुल कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक है. सो यू विल गेट दिस थिंग, ये कहना चाहती थी ना आप, ये कह रही थी ना, right? ये सही बोल रहे थे, ये सर. ठीक. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, 3 implies 1. सो ये मान के चल रहे हैं, हमको दिखाना है, ये मान के चले दिखाना है कि u का इनवर्स u स्टार ही है. सो हम यहाँ लिख सकते थे, शुरुआत में लिख सकते थे फॉर एवरी x, ये ऐसा हो रहा है, राइट. सो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर ऑल हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है. तो हम दिखा दें कि किसी भी x पर
इसकी और इसकी इमेज एक ही है तो हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो आई टेक एनी एक्स, I take any x, and then we look at this thing. U star को U से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंपोज कर दीजिए x, और x को नजर मारिए। So this thing is equal to ux comma U star x, और आपने इसके पहले देखा था, अगर बुरे ना हो, then U star was equal to U. So this is ux which is equal to xx. So which is equal to xx, right? Which is equal to xx. So this thing which I can rewrite as ये एंटी ट्रांसफॉर्मेशन है x। सो बीच का भूल जाइए, हमने दिखा दिया कि ये बराबर इसके है। सो देयरफॉर एज ए कॉन्सिक्वेंस U star U minus I x is equal to 0 for every x, and therefore this should be the null transformation. Whereby U star is the inverse of this thing. So these three conditions are equivalent. और आगे बढ़ने के पहले एक और छोटी सी चीज हम लोग कर लेते हैं, then I'll go to the next new page. So this will take care of the equivalence of these three conditions, and then you can notice that इसको भी लिख देते हैं, proposition लिख देते हैं, that if U is orthogonal, then a subspace of U is V. I'm sorry. U नहीं, U तो ऑपरेटर है, right? So a subspace this is U invariant will imply कि इस W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट is also U invariant. अगर आपको याद हो, एक चीज हमको देखी थी पहले, अगर हम ऑर्थोगोनल कंडीशन ना लगाते तो पहले क्या देखा था कि अगर W इन्वेरिएंट है, W ऑर्थोगोनल जो है, W पर्प जो है वो होता है U स्टार इन्वेरिएंट। लेकिन इस केस पे क्या होगा कि अगर U ऑर्थोगोनल है then this is going to be when U invariant। और प्रूफ बिल्कुल आसान है, हमें क्या दिखाना है कि ये इन्वेरिएंट, यानी कि इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज अंडर U वापस इसके अंदर चली जाएगी। इसका हम कोई एलिमेंट लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज नोट कीजिए
कि ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने की। ऐसा क्यों हो पा रहा है? इसलिए हो पा रहा है, नोट दैट एस यू इज ऑर्थोगोनल, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल हो गया, इसका ये एडजॉइंट इसका इनवर्स है। एज यू इज ऑर्थोगोनल u is invertible, hence 1 1। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 10 अगर आपने ये लिया, इसकी इमेज ली, अब ये कहता है कि W U इनवेरिएंट, इतना तो मालूम है, अब इसको लिखिएगा मत, हम यहां लिखते हैं, किसी और रंग से लिखते हैं। इतना तो मालूम है कि दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू गो आउटसाइड दिस थिंग, चूंकि इनवेरिएंट है। अभी चूंकि U जो आपका 1 1 भी है, U 1 1 भी है। देखिए ऐसा है ना कि ये जो है, ये आपका मान लीजिए U है, सॉरी V है, इसके अंदर ये W बैठा हुआ है, यहां भी V है और W बैठा हुआ है, यहां से आता है आपके पास U मैपिंग है। अब इतना मालूम है कि इसकी इमेज जो है ये इसके बाहर नहीं जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी कि U 1 1 भी है, तो इसका हर एलिमेंट यहां पर जा रहा है। इसका मतलब कि इसका जो साइज है उतना ही साइज इसका भी होना चाहिए। बात समझ आएगी? ऑनटू भी हो जाएगी। ऑफ कोर्स W से W में ऑनटू हो जाएगा। वही चीज आपने जल्दी पकड़ लिया। तो दैट मींस आई कैन डू बेटर, आई कैन राइट दिस थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू, साधारणतः तो इसके अंदर कंटेंट होता, लेकिन चूंकि U 1 1 है तो 1 1 विल फोर्स दिस थिंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो बहुत आसान है। तो इसमें नोट करने की चीज क्या है? इसमें नोट करने की चीज ये है कि ओके, आई कैन, ये तो हम कल कर ही चुके थे, थोड़ा सा ऊपर से कर सकते हैं। आई कैन, ओके, सो यू सी दैट कि 1 1 होने की वजह से ये केवल कंटिन्यू बिल्कुल हुबहू बराबर हो जाएगा। अब जब ये बराबर हो गया तो इसमें ये चीज आ जाएगी कि यहाँ का, इधर का, इस इमेज का हर एलिमेंट इस W के किसी एलिमेंट का इमेज होगा, इसका यहाँ कोई भी। सो आई कैन राइट, तो अब नाउ लेट अस गो बैक टू व्हाट वी वांट टू प्रूव। हमको दिखाना है U इनवेरिएंट है, तो क्या दिखाना है कि इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज अंडर U वापस इसके अंदर रहेगी। तो इसका इसको एलिमेंट लेते हैं, राइट? ले लिया, लेट दिस बिलोंग टू दिस थिंग, देन फॉर एनी, हमें क्या दिखाना है? दैट दिस इज बैक टू दिस थिंग। फॉर एनी W इन W, हमें दिखाना क्या है? फिर दिखा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। हमें दिखाना यह है कि क्या दिखाना है कि UZ वापस इसमें बिलोंग कर रहा है। इसे बिलोंग करने का अर्थ क्या हो जाएगा कि वो एलिमेंट कब बिलोंग करेगा? जबकि W के किसी भी एलिमेंट से उसका इनर प्रोडक्ट 0, तो हमने लिया है W। हमको दिखाना है दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल, हम चाहते हैं कि ये कहीं से बराबर 0 आ जाए। 0 आ जाए, इसमें क्या हो जाएगा कि हर W के लिए UZ इसके ऑर्थोगोनल है, therefore UZ is going to belong to W per। But now you can see that for any W, I can write this W as an image of another element of W. This is equal to U W dash
इसको बाद में लिख देंगे, इसको हम बाद में कर देंगे। फॉर सम W डैश इन W, इसकी वजह से हुआ। तो ये जो W है इसको हम लिख सकते हैं U Z U W कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल के लिए हम देख चुका थे कि ये भी होता है हमेशा होता है ऑर्थोगोनल के लिए, राइट। क्योंकि ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है कि U स्टार इज इक्वल टू U इनवर्स, राइट। तो आई कैन यूज दिस थिंग एंड रीराइट दिस थिंग एज Z W. I can rewrite this thing as ZW. जस्ट मिनट, एक यूनिवर्सिटी से फोन आ रहा है। हाँ आनंद जी बोलिए। ठीक है कर लीजिए कल, है। अच्छा तो ऐसा करते हैं, वो चक्रवर्ती साहब तो होंगे नहीं, तो उनको हम लोग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनको हम ले लेते हैं लूप में, है, ठीक है। तो ये अरेंज कर लीजिएगा प्लीज, है। तो 1 बजे हम लेके आते हैं, ठीक है। ओके, वेन्यू वही रखिएगा, हम बता देंगे उनको, है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो हम लेट मी कम बैक टू दिस थिंग। सो दिस इज इक्वल टू, ये W डैश था, सॉरी ये W डैश। तो UZ का इनर प्रोडक्ट विद एनी एलिमेंट ऑफ W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इनर प्रोडक्ट UZ भी U W डैश पर W शायद अगेन एलिमेंट ऑफ दिस थी। ये ऐसा हो गया। अब ये Z कहाँ से आ रहा था? Z कहाँ से ढूंढ के लाए थे हम लोग? यहाँ से लेके आए थे। तो चूंकि Z यहाँ से आ रहा है, इसलिए पहले से ही Z जो है W के हर एलिमेंट से करने पर 0 होगा। तो ये चूंकि ये W डैश भी W का एलिमेंट है, दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज हमने पहले से ही इसको यहां से लिया था और हमारा W डैश जो है ये इसमें है। So you can see this thing is equal to 0. So we have shown, so therefore, U of set belong to this thing, and this will complete the proof because we have shown that कि इसका कोई भी एलिमेंट लें, उसकी इमेज अंडर U वापस इसके अंदर चली जाएगी। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी U इनवेरिएंट, राइट। तो अगर U ऑर्थोगोनल है, तो एनी सब स्पेस ऑफ V W अगर U इनवेरिएंट है, इसका अर्थ ये होगा कि W पर भी U इनवेरिएंट होगा इस ऑर्थोगोनलिटी की वजह से, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने की वजह से। यू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, देन आई विल यूज अ न्यू पेज। हो गया? Yes, Yes, sir. Okay, that's good. अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि let A be a square matrix. Now we claim that if rows of A are denoted as Ri, I'm sorry, B n cross n मैट्रिक्स कर दीजिए। I से लेकर के n तक and
columns of A are denoted as CI, I'm sorry, I from 1 to N, 1 to N, then we observe. जब भी ऑब्जर्व लिखें इसका मतलब आपको सोचने के लिए कुछ हम उकसा रहे हैं. Then we observe that the ijth entry of the product of A with this transpose is Ri Rj, and that of A star, A star तो लिख ही चुके थे हम. And A star, ओह पहले ठीक लिखा था. A स्टार कर चुके हैं, हम A स्टार ही चाहते हैं. A star A is Ci Cj. What I mean is this, ये आपकी A है. तो A जो है ये ऐसी है कुछ और N क्रॉस N है. तो ये पहली रो ही, इसको बोलेंगे R1. ऐसे ही अलग अलग रोज मिलेंगी. ये हमारी ith रो हुई, ये मान लीजिए मेरी Ri है. तो व्हाट इज माई R1? R1 वो रो है, उसे कॉलम वेक्टर मान लीजिए. इसका पहला कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, तीसरा कोऑर्डिनेट ये है, वगैरह वगैरह वगैरह. और ऐसे ही ये जो कॉलम्स होंगे, ये जो कॉलम्स होंगे, ये जो कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ith कॉलम को हम डिनोट कर देंगे बाई C. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. तो आप जो रोज हैं, हाँ बोलिए 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 सर. आपने रो और कॉलम को अलग उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया. हाँ ठीक कर देते हैं. यू आर राइट, यू आर राइट. 70 वर्ष की अवस्था में हम है, राइट. दिमाग में कुछ और लिख कुछ रहे हैं. ओके, सो ये हमारा, ये तो कॉलम्स हुए C1 Ci, ये हमारी रोज हुई. ये मान लीजिए हमारा, ठीक है, ये आपके पास है. सो दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. ये हम कहना चाहते हैं कि अगर रोज को हम लिखते हैं कैपिटल R1 R2 Rn, कॉलम्स लिखते हैं कैपिटल C1 C2, तो इसका जो टर्म होगा ये ऐसे हो जाएगा. और इसको देखना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है. क्या कारण है? जैसे मान लीजिए कि हम A को ले लेते हैं मैट्रिक्स जिसका ijth तभी है, और A स्टार को लेते हैं वो मैट्रिक्स जिसका कि ijth टर्म मान लीजिए ये है, एंड A स्टार को ले लेते हैं जिसका कि ijth टर्म मान लीजिए Cij. Then from what you know already about matrix multiplication, the ijth entry of this product of the matrices is going to be of the form AI1 B1, नहीं क्या लिख दिया हमने? अच्छा I है ना, हाँ ठीक, J प्लस AI2 B2J वगैरह वगैरह प्लस AIN B. डू यू एग्री? प्रोडक्ट की जो ith एंट्री होगी वो इसके ith कॉलम को, इसके ith रो को इसके jth कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग. लेकिन ये मत भूलिए
कि जो लोगों ने पहले देखा था, क्या देखा था, याद कीजिए। रिकॉल दैट Bij वो क्या है, इसके ट्रांसपोज लीजिए प्लस कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका AJI, ये हो जाएगा आपका। डू एग्री? JI का बार। क्या चीज? नहीं, आप याद कीजिए, अगर ये मैट्रिक्स ये है तो ये है क्या, ये इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ना, तो आप इसका पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिएगा, तो जो आई एथेंट्री वो JI एथेंट्री हो जाएगी, तो उस लीजिएगा, उसका लीजिएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यही तो हो जाएगा ना। यस सर। नो तो हाँ, तो हम यही आपको याद दिला रहे हैं कि ये जो BI, ये जो लिखे हुए हैं, ये दरअसल है क्या, ये दरअसल ये है, दे आर एक्चुअली AI1, तो B1J क्या हुआ, B1J हो जाएगा आपका BJ, आई एम सॉरी, A, B तो है ही नहीं क्या, दिस इज AJ1 this plus AI2 AJ2 plus AIN AJN, this thing. You'll get this thing. And this I can rewrite as inner product of AI1 AI2 up to AIN, और यहां लिख देंगे हम AJ1 AJ2 AJN। देखिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें चूंकि हमारी फील्ड क्या है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सब लिख सकते हैं, या इसमें लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, सही जो पिक्चर क्या है, विद AIJI बार नहीं होना चाहिए, AJI बार। एक मिनट करते हैं, इसको पूरा कर लें। एंट्रीज फ्रॉम R और C। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, बार इसलिए नहीं होगा बेटा कि ये आपको याद है कि C⁴ में इनर प्रोडक्ट क्या होता था, याद है? आप में किसी एक को तो याद था। आई रिमेम्बर वन गर्ल यस्टरडे, है ना? तो जब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट उनका लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है, तो जब ये लेंगे तभी जाके मिलेगा आपको, राइट? तो ये एक्चुअली है क्या, अगर इसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो गई तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये जो मिलेगा आपको, ये कॉलम वेक्टर चाहे रो वेक्टर लीजिएगा, सब इसके एलिमेंट्स हुए, राइट? तो इसके अंदर इनर प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, I1, ये आपकी हो जाएगी RI, ith रो, ये कौन सी हो जाएगी, jth वन। तो यही यहाँ पे लिखा था, यही लिखा था इसमें कि the ith entry of this thing is going to be this thing, so this confirms this thing, right? ऐसे इसको भी कर लीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ऐसे इसको भी कर लीजिएगा, right? So I'll leave it for you to complete. So we'll remember that if A is an n cross n square matrix, तो A स्टार का जो ijth एंट्री है वो ये होगी, ठीक है? तो ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सो नाउ you can see हम इस जगह का इस्तेमाल कर लें, तो केवल आपको याद दिलाने के लिए लिखा था। I also want to use this thing.
Okay, so let me use this space. राइट, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि proposition for a square matrix A, the following things are equivalent. क्या? That this is unitary डिपेंडिंग कि आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है या अगर कॉम्प्लेक्स का यूनिटरी नहीं तो ऑर्थोगोनल हो गया. The rows of A form an orthonormal set. And third, the same thing about columns. The columns of A form an orthonormal set. ठीक है, वो इसी से फॉलो कर जाएगा. देखिए, अगर ए यूनिटरी हो गई तो परिभाषा के मुताबिक ए स्टार इज द इनवर्स ऑफ ए. तो उस केस पे क्या हो जाएगा हम लिख देते हैं प्रूफ केवल आउटलाइन ओनली. Just put that A is unitary or orthogonal implies that A star is equal to A inverse, whereby A star will be equal to this, तो जब आप A स्टार का आई जे टर्म निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 1 1 1 1, बाकी सब जगह 0 हो गया आपका. यही आपका ए स्टार है और यही आपका ए स्टार ए भी है. तो यहां पर ith एंट्री जो है दैट इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ आई इज इक्वल टू जे, अदरवाइज इट इज 0. तो ये एंट्री जितनी भी एंट्रीज हैं, ये जो एंट्रीज हैं दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू आइदर 1 और 0. अगर ए आपका ऑर्थोगोनल है, अगर ये ऑर्थोगोनल है सो द ith एंट्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू आइदर 1 और 0. 1 कब होगी? when I is equal to j. So when I is equal to j पे 1 हो रहा है, इसका क्या मतलब जाएगा कि this product, inner product is 1 if ri is equal to this thing, otherwise it is equal to 0. इसका मतलब ये जो आपको n एलिमेंट्स का जो सेट मिला r1 r2 rn, ये जो सेट मिला, ये सेट जो आपको ऑर्थोगोनल हो जाएगा. आर यू फॉलोइंग? ये जो मिला आपको, ये क्या कहता है? द रोज ऑफ ए, इनकी जो रोज मिली आपकी, ये r1 r2, इनको मान लीजिए ट्रीट देम एज एलिमेंट्स ऑफ c टू द पावर n और r टू द पावर n, डिपेंडिंग की फील्ड रियली कॉम्प्लेक्स है. तो आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है इस केस में? या तो r टू द पावर n है या c टू द पावर n है. ये उसके n एलिमेंट्स हैं. ये बता रहा है कि ये एलिमेंट जो है इनका इनर प्रोडक्ट 1 होगा इफ एंड ओनली इफ
I is equal to j, L set is going to be equal to 0, which is same thing as saying that this set is an orthonormal set, जो लिखा हुआ है, right? आपको अगर इसकी ठीक है, so because this is going to be equal to, क्योंकि इसको इसके बराबर होना है, तो इनका इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो कब होगा? केवल तब जब i इक्वल टू जो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 के बराबर होगा इसलिए ये हो जाएगा नॉर्मल, सारे सब नॉर्मल हो गए, राइट? और अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी सो दिस फॉलोज फ्रॉम हियर. यू ओनली नीड टू नोटिस दैट यूनिटरी का अर्थ क्या है कि ए स्टार ही ए का इनवर्स है, और ए स्टार के आई जेथ एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं, तो वहीं से फॉलो कर जाएगा, ठीक है? तो इट डजंट रिक्वायर एनी सेपरेट प्रूफ, दैट इज व्हाई एन आउटलाइन इज sufficient. इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, then I can pass on to the next page. करें नेक्स्ट पेज चले. हेलो. Yes, sir. ओके. अच्छा, अब जैसे आपने ग्रुप्स में पढ़ा होगा, रिंग से पढ़ा होगा, वेक्टर स्पेस में पढ़ा होगा कि ग्रुप्स के बीच में जो रेलेवेंट मैप्स उनको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस के बीच में जो रेलेवेंट मैप्स उनको क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. तो वेक्टर स्पेस में और इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या अंतर है कि आपने एक एडिशनल चीज जोड़ दी, इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट, राइट? वेक्टर स्पेस ही है जिस पर एक इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन किया गया है. तो जिस तरह से दो वेक्टर स्पेस के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए उसको. दूसरी इसमें चूंकि इनर प्रोडक्ट है तब भी कुछ होना चाहिए. अब वो क्या चीज है कि शुड प्रिजर्व इनर प्रोडक्ट. सो दैट विल लीड टू द फॉलोइंग डेफिनेशन. वो ये है. ए बाइजेक्टिव मैप, बल्कि उसको टी लिख देते हैं. Between two inner product spaces over the same field is called an isomorph. If it is linear transmission, and number 2, it preserves inner product. जिसका अर्थ ये हुआ that is for all U1 U2 in capital U, जो U1 और U2 का इनर प्रोडक्ट होगा, वही इनर प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू वही आएगी. दिस इज इनर प्रोडक्ट विद इन U. फिर इसकी इमेज ले लीजिए, TU1, और ये चलेगा यहाँ पर, और जो W का इनर प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसको हम ऐसे नोट कर देते हैं. सो द इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 U2 जो था, उनकी इमेज लेने के बाद उसमें कोई परिवर्तन ना आए तो बोलेंगे इट प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट. इफ दिस थिंग हैपेंस देन वी से दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म. राइट? एंड वी नोटिस दैट Note that if you take TU1 minus TU2, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन TU1 एंड TU2. इसको हम ट्रीट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन TU1 एंड TU2, राइट?
तो ये जो किसके बराबर हुआ, इसका अगर स्क्वायर ले लें, देन दिस थिंग इज इक्वल टू TU1, TU2. Right? If you take this thing, और चूंकि ये जो है ये इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहा है, दिस ऑल्सो इक्वल टू U1 U2 which is equal to U1 minus U2 का this thing. Therefore, the distance between U1 and this thing is equal to, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर T आइसोमॉर्फिज्म है तो जो डिस्टेंस U1 U2 के बीच में है वही डिस्टेंस रहेगा उनके इमेजेस के बीच में. फॉर दिस रीजन, राइट, सो an isomorphism as defined above is also called मीट्रिक. का मतलब होता है मोटा मोटा गणित की भाषा में मीट्रिक का मतलब जो डिस्टेंस कन्वर्शन कैप्चर करता है. तो आइसोमेट्री मतलब ये जो है डिस्टेंस को प्रिजर्व करता है, यानी कि ये जो आइसोमॉर्फिज्म इट आल्सो प्रिजर्व्स द डिस्टेंस. दैट इज व्हाई इन मेनी बुक्स what we have called in an isomorphism is also called an isometry. So what's an isometry between two inner product spaces? It's a transformation which is 1 on 2 which preserves inner product. Automatically वो distance भी preserve कर देगी, right? So you get this thing. And then before I turn to something more serious, let me give an example. जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह का प्रश्न हो कि फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose first row is let us say 1/3, 2/3, 2/3. तो इसमें एक चीज छिपी हुई है. क्या चीज छिपी है? अगर मैट्रिक्स की पहली रो में 3 टर्म्स हैं, क्योंकि मैट्रिक्स हैज टू बी स्क्वायर, तो उसमें 3 कॉलम्स भी होंगे. नंबर 1. और हम क्या कर रहे हैं, रो को ट्रीट कर रहे हैं एज ए रो वेक्टर, रो को वेक्टर. तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हमको ढूंढनी है वो क्या है? मैट्रिक्स हमारी ये ढूंढनी है हमको. पहली रो तो दी हुई है 1/3, 2/3, 2/3. हमको ये खोजना है. Something like this thing, right? Something like this thing, right? So this is the question before you. अब हम क्या करेंगे, अपना जो पहले की जानकारी है उसका इस्तेमाल करेंगे. क्योंकि मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है, तो अब हम पेज तो हम दोबारा नहीं लाएंगे. यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है. तो आप याद कीजिए कि अभी भूले नहीं होंगे आप लोग कि जो ऑर्थोगोनल अगर मैट्रिक्स है तो उसकी जो रोज हैं दे फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. तो अगर एक रो हो गई, इसको ढूंढना है आपको, इसको ढूंढना है, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो भी निकलेगी दिस शुड बी ऑर्थोनॉर्मल विद दिस थिंग, मतलब दिस शुड बी ऑर्थोगोनल टू दिस थिंग एंड टू दिस थिंग. और इसका नॉर्म भी 1 होना चाहिए, इसका भी नॉर्म 1 होना चाहिए. ठीक है. इसका नॉर्म 1 है कि नहीं? इसका क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा,
who's first this thing, first row is this thing, ठीक है। तो ओके, तो मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं, क्या बोला जाए, मान लीजिए इसका नाम है x1, ये है हमारा 1/3, 2/3, 2/3। तो मान लीजिए कि लेट y y लिखे, कुछ और लिखे, अच्छा ओके, अच्छा हम थोड़ा सा नोटेशन चेंज करेंगे क्योंकि हम XYZ किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, इसको भी नोट हटा देते हैं क्योंकि हम थ्रू आउट वेक्टर स्पेस को हम लिखते आ रहे हैं, या तो U लिख रहे हैं या W लिख रहे हैं, तो मे बी आई शुड राइट हियर U1, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एक लेते हैं U लेते हैं, लेट U भी दूसरा जो ले रहे हैं मान लीजिए है वो X Y Z, let this be the second possible, अभी पॉसिबल है, अभी इसमें गुंजाइश है कि निकलेगा कि नहीं, पॉसिबल रो, इसका नाम दे देते हैं तो हमको लिखने में आसानी हो जाएगी, पॉसिबल रो ऑफ ए। तो इसका मतलब कि ये जो है इसका ऑर्थोगोनल होगी, देन वी मस्ट हैव कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा आना चाहिए। इसमें एक चीज और लिख देते हैं, इसमें इसको आसान करने के लिए ऑर्थोगोनल रियल कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप निकाल लीजिएगा लेकिन रियल कर देते हैं, ठीक है। देन वी मस्ट हैव दिस इनटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए अगर ऑर्थोगोनल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, this into this plus this into this plus this into this should be equal to this. Then we must have x by 3 plus 2y by 3 plus 2z by 3 is equal to 0. तो क्या होगा x y z, ऑब्वियसली एक ही तो इक्वेशन है, तीन अननोन्स है, तो यूनिकली तो मिलेगा नहीं। So you can see that. So one possible value of x, y, z can be हम लेते हैं आसानी के लिए, हमारा कैलकुलेशन आसान रहा है, 0 ले लेते हैं, ये 0 कर देते हैं, y को कर देते हैं 1, z को कर देते हैं 1। बट यू मस्ट नोट ये हम कर रहे हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। यू कुड हैव टेकन x टू बी 0, y टू बी इक्वल टू 5, z इक्वल टू -5, या कुछ और ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट दिस ओनली, चूंकि आपको मालूम है इट हैज इनफिनिट सॉल्यूशंस, हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सेकंड जो हमारा जो ये जो निकलेगा, ये जो हमारा सेकंड जो निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हम यहां लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा समथिंग लाइक दिस थिंग, 0, 1, -1। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको चाहिए ये चीज याद रखना है कि जो भी मिलेंगे, ये जो रोज मिलेंगी, दे फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल, यानी कि हर वेक्टर नॉर्मल, ये नॉर्मल तो है नहीं, नॉर्मल करने क्या करें, इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, राइट। सो नॉर्मलाइजिंग 0, 1, -1
we'll get, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी 0 1 बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में यहाँ रोक दीजिए आप। हमने क्या किया कि ये तो हमने इतना तो सुनिश्चित कर लिया कि ये वेक्टर इसके साथ ऑर्थोगोनल है, लेकिन हमको चाहिए कि ये नॉर्मल भी हो, यूनिट, ये नॉर्मल वेक्टर हो, यानी कि इसकी लेंथ 1 हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे इसके नॉर्म से। तो हमने इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2, तो इससे डिवाइड कर दिया इसको। अब ये जो मिल गया हमको ये मिल गया। सो हमको जो x तो मिला था, ये u1 मिला था, हम क्या करते हैं कि अब एक हमको दूसरा मिल गया, उसको हम बोल देते हैं u2। u2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, राइट। तो 2 तो निकाल लिया, अब दूसरा निकाल लिया, थर्ड चाहिए, राइट। नाउ लेट u dash be the third possible row of A, then this should be orthogonal to the first row and to the second row. So then we must have, तो फर्स्ट रो के ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका इनर प्रोडक्ट विद दिस थिंग शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 0. So you must get then x dash by 3 plus 2y dash by 3 plus 2z dash by 3 should be equal to 0, and this should also be orthogonal to this thing. तो क्या हो जाएगा, y dash by root 2 plus z dash minus z, I'm sorry, minus z dash by root 2 is equal to 0, ये होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, right? So one set of possible values of x dash, y z, z dash, बताइए जो आपको इच्छा बताइए। हम क्या करते हैं, z डैश को तो ले लीजिए 1, अगर 1 ले लिया तो y डैश क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल पकड़ा ठीक से आपने, इसको 1 ले लिए। अब यहां से निकाल लीजिए x क्या होगा, बताइए, कोई बताए हमको, x क्या हो जाएगा, x will be equal to -4 minus 2y dash and minus 2z dash, वेरी राइट, -4 हो गया, -4 हो गया। अब ये ऑर्थोगोनल तो निकल गया, इसमें एक कमी बची है, इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, राइट, इसको नॉर्मलाइज कीजिए, क्या मिलेगा आपको, -4 बाई अंडर रूट इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, ऐसे ही कॉमा 1 बाई अंडर रूट, वो तो एक ही में सब में कॉमन है, ये तो कर लीजिएगा, कर लेंगे कि नहीं, यस सर, हो जाएगा। तो ना जो भी आए उसको बोल दीजिए, उसको आप क्या बोल दीजिएगा, u3 बोल दीजिएगा, हम करेंगे नहीं, इसको आप कर लीजिएगा, है तो कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको, तो यू कैन सी दैट, यू कैन, दिस ओनली वन सोल्यूशन, बहुत सारे मिल जाएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिनका कि पहला रो ये हो, इसमें से एक ही हो जाएगा, राइट। हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, हमने उस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया कि रोज जो है दे हैव टू फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हमने ये चीज किया, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है, इसके आगे कर लीजिएगा, राइट, इसको नॉर्मलाइज कर लीजिएगा।
नॉर्मलाइज नाउ, इसको नॉर्मलाइज कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। हो गया? ओके, सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, See- sir. See you.